Hello students, welcome on YouTube channel Chemistry by Shivam Education। Dear students, अभी हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर कंटिन्यू है और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करके ऑलरेडी 2 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एमाइंस पूरा अपलोड हो चुका है और अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यदि आपको इस चैप्टर की पढ़ाई बाकी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और 1 by 1 वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप उन चैप्टर की भी पढ़ाई कर सकते हो इस चैप्टर के साथ। यदि आप इस चैनल में पहली बार है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच कीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो लेक्चर की जानकारी मिलती रहे और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाए, कोई भी लेक्चर मिस न हो। डियर स्टूडेंट्स, ये चैनल हम आपके लिए ही चला रहे हैं। इस चैनल के उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग में नहीं जा रहे या कोचिंग एफोर्ड नहीं कर पा रहे लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। तो एनसीईआरटी के हर चैप्टर के हर टॉपिक की कॉन्सेप्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आपको वीडियो लेक्चर देखना है, पढ़ना है और उसके साथ साथ अपनी नोट भी बनानी है और लगन से और जी जान से ये काम करना है, जिससे आप आपके और आपके पेरेंट्स के सपने पूरे कर सको और नीट में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इन टुडे लेक्चर वी विल स्टडी chemical reaction of phenol. Now phenol giving us a 2 type of chemical reactions. Then we write a structure of phenol. So now in phenol, benzene ring with hydroxyl group. So phenol giving us 2 type of chemical reaction. First, reaction due to hydroxyl group. So first type of chemical reaction is reaction due to hydroxyl group of phenol. And second type of reaction, it is reaction due to aromatic ring. So due to aromatic ring, it giving us a electrophilic substitution reactions. Substitution occur in ortho positions or in a para positions. Now in today's lecture, we will discuss first type of chemical reactions, reaction of phenol due to hydroxyl group. Now we can write that phenol is weak acidic in nature. So phenol is weak acidic in nature. Therefore we can write that it does not give reaction. Phenol will not react with a sodium bicarbonate as well as we can write sodium carbonate. So phenol is very weak acidic in nature, so it does not react with a sodium carbonate as well as with a sodium bicarbonate. But phenol can react with a strong base like NaOH. Suppose it allowed to react. I have written phenol in this way. Now phenol is allowed to react with a strong base sodium hydroxide. Then reaction occur in this way that H plus of phenol and OH minus ion of hydroxyl group, sodium hydroxide. So at one type of acid base reaction, it gives salt and water molecule. OH from here react with H and remove in the form of water molecule. And as a result, we get a sodium phenoxide. So whatever molecule obtained to us, it is known as a sodium phenoxide. Now same type of sodium phenoxide ion is possible to prepare if phenol is allowed to react with a sodium metal. Suppose we have a 2 mole of phenol. This 2 mole of phenol is allowed to react with a 2 mole of a sodium metal. So when phenol reacting with a 2 mole of sodium metal, then reaction occur in this way. We get the same product sodium phenoxide ion. We get a same product sodium phenoxide ion, and with this hydrogen gas will liberate. So it quite easy reactions. Just we can understood in this way that sodium metal giving us a Na plus ion, and with this giving us a 2 electrons. Now here H plus ion, this 2H plus ion of phenol gain 2 electron and remove in the form of hydrogen gas. And this Na plus combined with this oxygen and giving us sodium phenoxide. Now suppose we have this phenol and phenol is allowed to react with a reactive metal like zinc. So if phenol is reacting with a zinc metal,
Then reaction occurring in this way, zinc reacting with this oxygen and remove in the form of zinc oxide and H combined with ring, and as a result we get a benzene. So whenever this phenol is allowed to react with a zinc metal, this is phenol is allowed to react with a zinc metal, then it is giving us benzene back. Now we will study Williamson synthesis and how ester compound is possible to prepare with help of phenol. But पहले इन पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको नोट्स बनाने में हेल्पफुल होगा। और एक बात कि फिनोल है वो FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है। सो ये सेंटेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है, द फिनोल कैन रिएक्ट विद एसिड न्यूट्रल FeCl3. So phenol on reaction with neutral FeCl3 giving us purple color. So write please, phenol on reaction with neutral FeCl3. With neutral FeCl3. आपने प्रैक्टिकल किया होगा या प्रैक्टिकल लैब में भी परफॉर्म कर सकते हो कि फिनोल में न्यूट्रल FeCl3 डालिए, then with ferric chloride neutral solution it giving us purple color. This purple color is obtained due to the formation of complex. फिनोल है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है FeCl3 के साथ। यदि 3 मोल्स ऑफ फिनोल है तो 3 मोल्स ऑफ फिनोल है तो ये 3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl के फॉर्मेट में रिमूव हो जाएंगे और इस तरह का हमें कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, इसलिए फिनोल है वो पर्पल कलर देता है। Now we have studied that phenol can react with a strong alkali like sodium hydroxide. On reaction with this, it gives a water and sodium salt. Now phenol, sodium salt of phenol. The sodium salt of phenol can react with a acid chloride and giving us different type of ester compound. Suppose हमारे पास ये sodium salt है और phenol sodium phenoxide है. So this sodium phenoxide ion is allowed to react with a acid chloride. Suppose acid chloride general formula I have written RCOCl. Then reaction occur in between these two. Here electronegativity of chlorine is more, so chlorine having a partial negative charge, carbon having a partially positive charge. Similarly here oxygen electronegativity more, so oxygen having a partially negative charge and sodium having a partial positive charge. So sodium can combine with chlorine and giving us byproduct. One will be sodium chloride and second we get a ester structure. Now structure of ester we can write in this way, oxygen joined with a R, so oxygen, then R, oxygen joined with a carbon, carbon having a double bond with oxygen and R. So इस structure को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, it is nothing but RC double bond O and here C6H5. तो चलो इस कंपाउंड का एस्टर का नाम क्या दे सकते हैं? Then this is nothing but phenyl. So it is ester of phenyl. So we can write it is a phenyl ester. So reaction of sodium phenoxide with a acid chloride. When it allowed to react with acid chloride, then we get a phenyl ester. तो चलो acid chloride के दूसरे डेरिवेटिव ले लेते हैं कि यदि चलो मैंने सोडियम फिनॉक्साइड है उसकी रिएक्शंस means it allowed to react with a acetyl chloride. Acetyl chloride formula you are knowing very well, CH3COCl. Then reaction occur in the same way, same method, no any change. Here chlorine with partial negative charge, carbon having a partially positive charge. Similarly oxygen partial negative, sodium positive. Sodium combined with chlorine remove in the form of NaCl, sodium chloride, and we get this structure. Now here oxygen, then after CO, CH3, और इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं CH3, COO, C6H5. तो चलो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या दोगे आप बच्चों? It is nothing but it is a phenyl acetate. Acetate है या कॉमन नेम है, IUPAC नेम में आप phenyl इथेनॉल भी कह सकते हो। और यदि ये सोडियम फिनॉक्साइड है उसकी रिएक्शंस एसिटाइल क्लोराइड की जगह में बेंजोइल क्लोराइड ले लेता हूं तो भी इस तरह से रिएक्शन देगा, कोई चेंज नहीं होगा। चलो इसकी रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O
Cl। तो इसके साथ इसकी आगे रिएक्शन होती है। सेम मेथड, नो एनी चेंज इन रिएक्शन, क्लोरीन विद पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सोडियम विद है पॉजिटिव। सोडियम कंबाइन विद क्लोरीन, रिमूव इन द फॉर्म ऑफ NaCl। अब ये CO अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो स्ट्रक्चर हम इस तरह से लिख सकते हैं, हियर ऑक्सीजन, देन आफ्टर C डबल बॉन्ड O, एंड देन आफ्टर वंस अगेन दिस फिनाइल रिंग। अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फिनाइल बेंजोएट। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखा है मैंने, C डबल O एंड हियर C6H5। तो सेम स्ट्रक्चर लेकिन पहचान ना आना चाहिए। नाउ दिस मच पार्ट अकॉर्डिंग टू एस्टर नोमेनक्लेचर phenyl and remaining part benzoate, so we get here phenyl benzoate। तो बच्चों हमने इस पार्ट में फिनॉल है वो एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड हमें देता है। नाउ सोडियम फिनॉक्साइड कैन रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शंस के साथ वो हमें फिनाइल एस्टर मिलता है। नाउ सपोज एज एन एसिड क्लोराइड वी हैव टेकन एसिटाइल क्लोराइड, दिस इज नथिंग बट, चलो आपके लिए लिख लेता हूं, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। सो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी, देन सेम एज सोडियम कंबाइंड विद क्लोरीन, रिमूव इन द फॉर्म ऑफ NaCl, और हमें मिलेगा फिनाइल एसीटेट। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन इससे होती है, ये नथिंग बट बेंजोइल क्लोराइड। तो चलो बेंजोइल क्लोराइड के साथ उसकी रिएक्शन होती है, देन वी गेट है फिनाइल बेंजोएट। अब उसके आखिरी रिएक्शंस कि चलो इस सोडियम फिनॉक्साइड की हेल्प से किस तरह से ईथर बना सकते हैं, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब फिनॉल में से किस तरह से ईथर बनाते हैं वो पढ़ते हैं। तो फिनॉल की NaOH के साथ रिएक्शन से हमें मिला सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब हमें जो सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलता है उसकी रिएक्शन लेंगे हम अल्काइल हैलाइड के साथ, और एज ए अल्काइल हैलाइड जनरली वी टेक ए मिथाइल हैलाइड। सपोज द सोडियम फिनॉक्साइड आयन इज अलाउड टू रिएक्ट विथ ए मिथाइल आयोडाइड, फॉर्मूला मिथाइल आयोडाइड का CH3 है, तो उसके साथ इस तरह से रिएक्शन होगा, आयोडीन रहेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन रहेंगे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो देखो कौन कौन से जुड़ेगा, सोडियम विल जॉइन विथ आयोडीन और रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयोडाइड, और ये मिथाइल ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है बेंजीन रिंग विद दिस OCH3। सो इस स्ट्रक्चर को कॉमन नेम में बोलते हैं एनिसोल। एनिसोल इज कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, और इसका IUPAC नेम देना है, then it is OCH3 attached with a benzene ring। So इस स्ट्रक्चर को IUPAC नेम देंगे हम मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये बन गया हमारा मिथॉक्सी बेंजीन, और इसको अदर कॉमन नेम भी दे सकते हैं। चलो ये भाग है मिथाइल भाग, ये फिनाइल भाग है, सो उसको बोल सकते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर। तो उसका दूसरा कॉमन नेम होगा मिथाइल फिनाइल ईथर। तो आपको कन्वर्जन वाले स्टेप में भी पूछा जा सकता है कि चलो फिनॉल में से मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसोल बनेगी, तो दो स्टेप में बनेगा। फिनॉल में से पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन, बाद में सोडियम फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन होती है मिथाइल आयोडाइड से, देन वी गेट है एनिसोल। और इसी तरह से सपोज हमने मिथाइल आयोडाइड की जगह हमने लिया है इथाइल आयोडाइड, ये स्ट्रक्चर होगा इथाइल आयोडाइड का, सेम एज आयोडीन रहेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन रहेंगे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो सेम वे रिएक्शन होगी, सोडियम कंबाइन विद आयोडीन, रिमूव इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयोडाइड। जब हम हीट करेंगे तो ये इथाइल जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और मिल गया हमें ये स्ट्रक्चर OCH2CH3। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेनिटॉल। इट इज नोन एज ए फेनिटॉल। वी हैव ऑब्टेन्ड फेनिटॉल, और कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज फेनिटॉल, एंड IUPAC नेम इज this much part is ethoxy, so it is known as a ethoxy benzene। अब इसका और भी कॉमन नेम दे सकते हैं, ये पार्ट इथाइल पार्ट है, ये पार्ट फिनाइल पार्ट है, so we can write common name इथाइल फिनाइल ईथर। तो बच्चों इस मेथड से हमने फिनॉल में से ईथर बनाया। तो फिनॉल में से ईथर बनाने की इस मेथड को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ साइंटिस्ट विलियमसन सिंथेसिस। तो आपको
2 मार्क में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि शॉर्ट नोट लिखिए। चलो विलियमसन सिंथेसिस में, तो विलियमसन सिंथेसिस में फिनॉल को फर्स्ट रिएक्टिंग विद दिस बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स अ सोडियम फिनॉक्साइड आयन। बाद में सोडियम फिनॉक्साइड आयन if allowed to react with methyl iodide, then it gives any sol. If allowed to react with ethyl iodide, then it gives a phenol. So this method for production of ether from phenol is known as a Williamson synthesis. So in today's lecture, we have discussed the reaction of phenol due to the hydroxyl group. अब नेक्स्ट लेक्चर में फिनॉल की रिएक्शंस ड्यू टू दिस बेंजीन रिंग हाउ अकर्स, दिस वी विल स्टडी। बच्चों, इस लेक्चर से आपको एडवांटेज मिलता है, देन डोंट फॉरगेट टू पास दिस लेक्चर टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग आल्सो। और यस, यदि आप इस चैनल पर वीडियो लेक्चर स्टडी कर रहे हैं और आपको एडवांटेज मिला, फायदा मिला, तो फिर उन बच्चों तक भी ये वीडियो चैनल की लिंक भेजिए, इस चैनल की लिंक भेजिए, जिससे वो भी आपकी तरह एडवांटेज प्राप्त कर सके।